मैंने मेड स्कूल किया था अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर से 2002 में ग्रेजुएट किया था. उसके बाद आई डिड माय 1 year हाउस जॉब ओवर देयर. एट दैट टाइम हम लोगों को पता नहीं था कि हमारा प्लान था इधर आने का कि नहीं. तो आफ्टर हाउस जॉब, राइट आफ्टर माय हाउस जॉब, आई हैड माय डॉटर और मैंने फिर FCPS पार्ट 1 किया इंटरनल मेडिसिन. मैं स्टिल रिमेंबर, आई थिंक माय एग्जाम वाज 2 days आफ्टर हर फर्स्ट बर्थडे. So I wasn't too thrilled about cutting the cake. I was more like, my God, मेरा एग्जाम है. But anyways, FCPS पार्ट 1 करने के बाद then we decided कि हम most likely इधर अमेरिका की साइड पर आ जाएं. That's when my husband was planning to come here as well. तो 2005 इसलिए मेरा खासा लंबा, like I think it took me at least 5 years after my med school कि जब finally I made it to USA. Because I did it very gradually. मैंने step 1 किया 2005 में, and then again we were not like sure कि हमने यहाँ पर आना है कि नहीं आना. Then another year passed by, almost a year. 2006 में मैंने step 2 किया, and 2007 में फिर CSA करके I came here for observership. Because मेरे husband की job पाकिस्तान में थी, so it was not an easy decision to make. We knew this is what we wanted to do, but within having a daughter as well, it was kind of hard कि किस तरह manage करेंगे. Like जब मैं 2007 में आई थी CSA करने और observership करने के लिए, उस वक्त I had to send her back. वो मेरे लिए बहुत मुश्किल टाइम था. तो that gave me kind of a sense कि अगर मैं आऊंगी तो how difficult would it be for me managing कि बेटी को या वापस छोड़ूंगी या इधर लेकर आऊंगी. She was only 3 at that time. लेकिन then we finally 2008 में जब residency 2007 में residency के लिए apply किया, तो even at that time it was kind of, I wasn't sure कि apply करने के बाद मैं दुआ करूं कि मुझे residency मिल जाए कि नहीं मिले. But fortunately 2008 में जब residency का final हो गया, that's when we moved to United States. लेकिन उस वक्त भी the biggest thing was I applied in both. Like internal medicine का मुझे था खासा शौक, but you know how जिस तरह से हमारे mindset में होता है कि internal medicine या family practice करके आप पाकिस्तान जाके क्या करोगे, because that's what the plan was कि I'll go back to Pakistan. अच्छा. तो उस वक्त फिर हाँ, because my husband was there. So उस वक्त reluctantly I applied in OB-GYN as well. कि कि OB-GYN तो दुनिया में कहीं पे भी चली जाऊंगी, I will always have a career there. When I applied in OB-GYN and more so in internal medicine as well, तो मुझे internal medicine में भी, and I still regret, not exactly regret, I don't know. It was in Brown University. I got into कि उसमें मुझे residency की offer हुई, but वो लोग pre-match नहीं करते थे, and plus they were willing to sponsor only J1 visa. और जो मुझे prelim year मिला था OB-GYN का, उसमें H1 visa मिल रहा था. The only thing honestly speaking we knew at that time was कि H1 visa के बाद आपको green card जल्दी expedite हो जाता है, and then my spouse could come here as well. तो focus मेरा सिर्फ H1 visa पे. जो internal medicine का program था, even though it was an Ivy League program, but they were sponsoring only J1 visa. So our focus was to get H1 visa ताकि waiver नहीं करना पड़े और green card जल्दी हो जाएगा. उस वक्त I thought कि अच्छा चलो, even though it's a prelim year, I will opt for this OB-GYN prelim year contract. उसमें H1 visa मिल जाएगा, and I spoke to the program director उधर जो internal medicine वाले program की, and she said कि if you have H1 visa, so next year when you apply, you can transfer it to our program, but we cannot sponsor H1 visa because that was a university program. तो मैंने जुलाई में start की OB-GYN में residency, और I think उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, this is it, I don't want to go to internal medicine. रेजिडेंसी का भी उम्र एक्चुअली हुआ कि हम लोग के लिए थोड़ा चैलेंजिंग इसलिए हो गया कि जुलाई में रेजिडेंसी स्टार्ट की, but and my husband came here with me, but in September he had to go back. He got the call because he had to go back to his job. So just like I said, हमें actually we had very limited knowledge. हमें बस ये पता था कि H1 वाले वीजे पे फोकस करना है, and I should have taken my USMLE step before applying for residency ताकि green card जल्दी हो जाए. What we did not know is कि H4 पे spouse cannot work in America. We didn't know about it. तो उसके बाद I still remember I was at work when he called me that he was supposed to leave the very next day. So he had to go back and my daughter went back with him. तो वो जो 4 months थे, that was like मुझे लगा कि नहीं, this is not possible. I will have to go back to Pakistan क्योंकि बेटी वापस चली गई थी. And आपको पता है इंडिया वो पाकिस्तान और अमेरिका के टाइमिंग्स इतने डिफरेंट होते हैं कि by the time 7 बजे मैं रेजिडेंसी से निकलती थी, it used to be like 4 o'clock 5 o'clock in the morning in Pakistan. तो पूरा दिन उससे पार नहीं.
She was 3.5. Yeah. 3.5. Oh She my was 4. goodness. तो उस वक्त मुझे याद है I had a resident मेरे साथ जो मेरा एक था फर्स्ट ईयर इंटर्न था, उसके साथ में he was nice enough कि उसको मैं कहती थी, जब मेरी ओबी की रोटेशन थी तो मैं उससे कहती थी कि सुबह के सिर्फ 2 पोस्टमार्टम पेशेंट्स मेरे साथ ट्रेड कर लो। तो वो जो सुबह के मुझे 10 मिनट्स मिलते थे, दैट वाज माय ओनली टाइम कि कहीं साइड पर छुप कर अपनी बेटी को फोन कर लूं, अदरवाइज पूरा वीक गुजरेगा एंड आई वुडंट बी एबल टू कॉल हर। और उसको मैं एक्यूमुलेट करके तो इन रिटर्न मैं वीकेंड्स पे उसका कोई सैटरडे कॉल कर दिया करती थी। सो दैट वाज माय ओनली टाइम टू टॉक टू हर। तो फरवरी में आई वेंट बैक टू पाकिस्तान एंड आई ब्रॉट हर बैक विद मी। और मैं अपने साथ खाली सूटकेस से सब कुछ लेकर आई कि आई वाज जस्ट गोना गो बैक टू पाकिस्तान, दिस इज नॉट समथिंग प्रैक्टिकल एंड इट्स नॉट डूएबल। और टू माय लक एक्चुअली उसको मैं लेकर आई और 1 हफ्ते के बाद मेरे हस्बैंड ने वापस आना था। बट मैं जब उसको लेकर आई इन द वेरी नेक्स्ट डे आई मूव टू वन ऑफ माय फ्रेंड्स प्लेस। मैंने कहा उसकी अम्मी घर पर होती हैं तो एटलीस्ट मेरी बेटी उनके साथ रह सकेगी। द वेरी फर्स्ट डे जब मैं वापस गई रेजिडेंसी पर और मेरी बेटी आंटी के पास थी, तो अराउंड 4 o'clock इन द इवनिंग मुझे आंटी का फोन आया कि अनफॉर्चुनेटली उनकी मदर को स्ट्रोक हो गया एंड शी वाज इन द ईआर। तो शी सेड बेटा देयर इज नो वे दैट आई कैन टेक योर डॉटर विद मी टू द ईआर, आके अपनी बेटी को ले जाओ। एंड आई वाज इन द रेजिडेंसी। तो मैंने बस उसको जाकर लिया इन द वेरी नेक्स्ट डे, नॉट नोइंग कि डे केयर्स आर नॉट समथिंग कि आप एक दिन अचानक बच्चे को डाल दो। आई ट्राई टू टेक इट टू डे केयर। उन्होंने कहा कि नहीं वो तो आपको प्रॉपर एनरोल कराना होता है और कितनी देर के लिए कराना है। आई टुक हर टू माय हॉस्पिटल एंड ऑफ कोर्स दे टोल्ड मी कि यू कैन नॉट ब्रिंग योर चाइल्ड विद यू, शी कैन नॉट इवन स्टे इन द डॉक्टर्स लाउंज। तो उन्होंने कहा यू विल हैव टू गो बैक होम। तो फिर आई वेंट बैक एंड आई वेटेड फॉर 6 days फॉर माय हस्बैंड टू कम। उसके बाद फिर वी काइंड ऑफ डिसाइडेड कि नहीं ये तो नहीं हो सकता, लेकिन आई मस्ट से कि मैं हर स्टेप पर आई वाज विलिंग टू गिव अप एट एनी सेकंड जस्ट बिकॉज ऑफ माय डॉटर। और लेकिन मेरे हस्बैंड की बड़ी मुझे वो थी, बड़ी पुश थी, बड़ी सपोर्ट थी कि डोंट वेस्ट योरसेल्फ, हो जाएगा हो जाएगा। बट अप्रैल में मुझे याद है मेरा नाइट फ्लोट चल रहा था और उस वक्त मुझे जहाँ पे मैं प्रीलिम ईयर कर रही थी तो मुझे मेरे चेयरमैन ने ऑफर किया कि तुम इसी प्रोग्राम में यू विल नॉट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट ईयर अगेन, बिकॉज उसके प्रीलिम ईयर के कॉन्ट्रैक्ट में ये था कि यू गेट द फर्स्ट ईयर और उसके बाद इफ यू एंड अप स्टेइंग एट द सेम प्रोग्राम तो नेक्स्ट ईयर यू गेट द कैटेगोरिकल 4-year रेजिडेंसी। तो आई गॉट लकी इनफ, उन्होंने मुझे सेकंड ईयर पोजीशन ऑफर कर दी। बट उस वक्त हुआ ये कि उन्होंने सेकंड ईयर पोजीशन मुझे जिस मेरे कॉलीग के अगेंस्ट ऑफर की थी ना, ही वाज द वन हु हेल्प्ड मी। उसके वो जो 10 minutes की हेल्प थी ना, सो दैट आई कुड टॉक टू माय डॉटर, दैट वाज अ ह्यूज थिंग टू मी एंड आई सेड आई कांट डू दिस टू हिम। बट एनीवेज मेडिसिन में थी या ये ओबीजीवाइन में थी? गायन आई डिडंट नो कि ओबीजीवाइन में यू कैन डू इंटर्नशिप लाइक प्रीलिम ईयर। या इट वाज अ प्रीलिम ईयर कॉन्ट्रैक्ट, यस। अच्छा, आई डिड नॉट, आई नेवर न्यू दैट। अच्छा हाँ, तो आई प्राइमरीली एंडेड अप टेकिंग इट बिकॉज ऑफ H1 वीजा। जैसे मैं कही थी कि हमारी सबसे बड़ी वो जो था चीज थी कि H1 लेना है so that we can get the green card within 3 years, like right after 3 years we should be able to apply for it. अप्रैल में बस नाइट फ्लोर पे लास्ट वाला नाइट फ्लोर चल रही थी और मेरी 4th ईयर की रेजिडेंट ने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे फिलाडेल्फिया में एक हॉस्पिटल है एंड दे स्पॉन्सर द ग्रीन कार्ड, तो वो तुम्हें ग्रीन कार्ड स्पॉन्सर कर देंगे एंड देन योर हस्बैंड विल बी एबल टू कम हियर, फिर तुम्हारी बेटी भी यहाँ रह सकेगी। और मैंने उस दिन सुबह रेजिडेंसी कोऑर्डिनेटर से जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिए और मैंने कैजुअली ऐसे ही फैक्स कर दिए इधर आइंस्टाइन हॉस्पिटल फिलाडेल्फिया में। और द वेरी नेक्स्ट डे मुझे चेयरमैन की फोन कॉल आ गई एंड दे फॉर्चुनेटली हैड अ सेकंड ईयर स्लॉट ओपन। तो उसके बाद माय हस्बैंड ब्रॉट मी हियर, उन्होंने कहा कि अब फोन किया तो इट लुक्स ऑकवर्ड, इट्स ओके, तुम चली जाओ इंटरव्यू पे। और हम जब गए वहां पर एंड आई सेड टू हिम कि मुझे 5 बजे पिक कर लीजिएगा। जब वापस आई हैड टोल्ड हिम कि वी वर गोना गो बैक टू पाकिस्तान, देयर इज नो वे कि हम यहाँ रुकेंगे। बट जब चेयरमैन ने ऑफर किया तो मुझे लगा कि बड़ा ऑकवर्ड लगेगा कि मैंने साइन ना किया, तो किस्मत में लिखा था तो मैंने उस वक्त साइन कर लिया सेकंड ईयर स्लॉट। तो फिर आपने उस बंदे का नहीं लिया सेकंड ईयर का स्लॉट जो? अच्छा, मेरे लिए वो 10 minutes उम्र इतने आज तक जिसे कहते हैं ना मेरे दिल पर लिखे हुए हैं वो 10 minutes, that was the only time I could talk to my daughter। तो वहां पर 3 साल की रेजिडेंसी की और उस वक्त एक्चुअली आई वाज प्रेग्नेंट विद माय सन। इट वाज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन OBGYN की रेजिडेंसी एट अ हॉस्पिटल लाइक बिकॉज वी न्यू वी वर गोइंग बैक टू पाकिस्तान। तो it was a very difficult time. Oh my god, it was bad. Like I think it was a month ago. One of my attendings from there, he texted me. He said, I was just thinking about you. He used to call me Newton. So he said, मुझे वो याद आ रहा था कि like I was on the night floor, तो हमारी it was busy to the point उमर के हमारी जो
हॉलवेज थे ना, उसमें डिलीवरीज हो रही होती थी, कभी कभी ट्रियाज में भी जगह नहीं होती थी. इट वाज क्रेजी ओवर देयर. तो उसमें ऑब्वियसली यू रियली कांट फाइंड एनी टाइम टू ईट और ड्रिंक एनीथिंग. खाने पीने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता उधर. तो उस पे इट वाज राइट एट द, मतलब बिल्कुल सुबह के 6 बज रहे थे, एंड आई वाज डूइंग अ कंसल्ट इन ईआर, एंड अ पेशेंट हैड कम विद हाइपरेमेसिस की जी वॉमिटिंग हो रही है ऐसे करके. तो आई वाज टेकिंग हर हिस्ट्री, एंड जस्ट व्हेन माय अटेंडिंग वॉक्ड इन और मुझे पता चला आई पास्ड आउट ऑन हिम. ये लोग मुझे वापस लेके गए तो इट टर्न्ड आउट कि ग्लूकोज लेवल बढ़ लो था, एंड ही वाज जस्ट टेलिंग मी, ही सेड आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट कि उसके बाद दैट पेशेंट फेल्ट सो लेम अबाउट हर कंप्लेंट्स जिसके लिए वो ईआर में आई हुई थी कि हाउ वर यू वर्किंग. बट हो गया, खत्म हो गया. इट वाज नॉट अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस, बट हो गया, खत्म हो गया. एंड देन आई फिनिश्ड माय रेजिडेंसी फ्रॉम देयर. आई वाज इन 4th ईयर ऑफ रेजिडेंसी, अभी मेरी शुरू हुई थी. तो जब मैंने यहाँ पर जॉब के लिए साइन किया था, तो इट टर्न्ड आउट गुड कि मैंने नवंबर में जॉब के लिए साइन किया, जनवरी में दे अप्लाइड फॉर माय ग्रीन कार्ड, एंड आई स्टार्टेड विद देम ऑन October 1st, और नवंबर में वी हैड द ग्रीन कार्ड. आई वाज सपोज्ड टू स्टार्ट विद देम ऑन August 1st मेरी जॉब पर, और मेरा वीजा था 30th जून तक था यहाँ पर. But then the lawyer told us कि नहीं नहीं, CEO को पता नहीं था, this is not an underserved hospital, so you will have to go back to your country, और वहां से आप दोबारा से H1 लगवा कर आएंगे जब तक आपका ग्रीन कार्ड नहीं हो जाता. That was quite risky because तब तक हम यहाँ पर सब कुछ लॉट ले चुके थे, घर बन रहा था, तो एंड देन वी हैड टू गो बैक. तो वो एक बड़ा रिस्क हमने लिया. दैट आई पर्सनली थिंक कि जब आप किसी जॉब के लिए इंटरव्यू पर जाओ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सीईओ से कंफर्म करो कि हैव यू रियली कंसल्टेड द लॉयर ऑफ द हॉस्पिटल के इस पर्टिकुलर स्पेशलिटी में ये हॉस्पिटल अंडरसर्व्ड है कि नहीं. I would definitely want to tell people कि if you end up going into a surgical specialty, और जब आपको वो कॉन्ट्रैक्ट दें, and they always try to do it based out of like work RVOs, तो उसमें never sign up for that. वो इसलिए कि if there's like any surgical procedure, जैसे आपको पता है कि बहुत से minor surgical procedures जैसे even hysteroscopies होगी, LEEP, like a lot of surgical procedures in GYN can be done in the offices now. Insurance companies वाले जो हैं, they want to incentivize doing all those procedures in the office setting क्योंकि उनको anesthesia की या OR की charges नहीं देने पड़ते हैं. So in other words, if you do a minor procedure in the operating room, for example, if you get 4 RVUs for that, if you do the same procedure in the office setting, there are 12 RVUs for that. तो एक बारी जब मेरे से उन्होंने negotiate करने की कोशिश की कि we are going to change your compensation model into RVU based. So I told them right there and then, मैंने कहा, do you think I don't know about it? तो मैंने कहा कि जो मैं आज 4 procedures कर आई हूँ, if I had done it in the office, तो मेरे 4 to 5 times RVUs होते. When I do it in the operating room, तो फिर that's where the hospitals, like it goes in their benefit. तो इसीलिए अगर आप surgical field में हो, तो I think it's very important to know कि RVU based model पे नहीं जाना, because आप तो उतना ही काम कर रहे हो, और hospitals को most likely उसमें they have much more profit margin जब आप ये सब procedures operating room में कर रहे हो, मगर you don't want to get the hit for that, for something which is not your fault.